Hello students of class 10th. Students, chapter 6 triangle is going on and exercise 6.5 up to question number 6 we have done today. In this video I am going to start the last exercise 6.5 from question 7 onwards. From question 7 onwards I am going to start. The question number 7 is that prove that sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals. What is given? A rhombus is given. A, B, C, D is a rhombus. As we all know that in a rhombus all sides are equal and diagonals bisect each other at 90. डायगोनल किस पे बाइसेक्ट करते हैं? 90 पे बाइसेक्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 गिवन. व्हाट इज गिवन? और ट्रायंगल गिवन है ए बी सी डी इज ए रोम्बस. व्हाट वी हैव टू प्रूव? क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है हमें द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस. रोम्बस की सारी साइड्स के स्क्वायर का सम, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स मीन्स ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. ये हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में. नाउ प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन एज इन ए रोम्बस. Diagonals bisect each other at 90. रोम्बस में डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट करते हैं एंड ऑल साइड्स आर इक्वल. और सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. तो इन ट्रायंगल ए ओ बी, नाउ इन राइट ट्रायंगल AOB में this angle is 90 degrees, so we can implement Pythagoras theorem in this triangle, that is AB square equals to OA square plus OB square. रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं मीन्स ये इसके इक्वल होगा और ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के. OA इक्वल होगा OC के एंड OB इक्वल्स टू होगा OD के. So finally, by which theorem से? By Pythagoras theorem से. AB square as it is equals to OA. Students, OA को लिख सकते हैं half of AC. Similarly, OB को लिख सकते हैं half of BD. तो in place of OA we can write half of AC का whole square as it is plus OB की जगह क्या लिख सकते हैं? half of BD का whole square. Now we are going to open the squares. AB square equals to AC square upon 4 plus BD square upon 4. Take LCM. 4 LCM आ जाएगा. Finally AC square plus BD square. Shift कर दीजिए 4 को. इधर क्या चल रहा है? AB square. 4 इधर शिफ्ट कर दीजिए. Finally 4AB square equals to AC square plus BD square. 4AB square means we can write AB square plus AB square plus AB square plus AB square. 4 बार लिख देने जा रहे हैं. AB square plus AB square plus AB square plus AB square is equals to AC square plus BD square. My dear students, all 4 sides are equal in a rhombus. So in place of AB, 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 what we can write? In place of one AB we can write BC, another one CD and last one AD. So AB square as it is. एक यहाँ AB square की जगह लिख दिया BC square. एक बार क्या लिख सकते हैं? CD square और एक बार लास्ट में क्या लिख सकते हैं? AD square. और राइट साइड में क्या चल रहा है? AC square plus BD square. This is the verification of this question. Question was prove that the sum of the square of the sides of a rhombus
इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। ये क्वेश्चन नंबर था 7 आपका। Question number 8. Students, you will solve. What you will do in this question? Firstly, you will join the each vertex with point O. OA, OB, OC को ज्वाइन कर देंगे और with the help of first part 3 ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट करेंगे और आपका फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। ओके, if you are having the problems, then I will solve your problem. But firstly, you will complete this question number 8. Now question 9, I am going to start. The question number 9 is that a ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. एक लैडर है आपकी, ये लैडर समझ लीजिए आप, और ये वॉल है जिसकी हाइट कितनी है वॉल की 8 मीटर और 10 मीटर लैडर की लेंथ है। ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया नीचे, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया है। व्हाट वी हैव टू डू, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। लैडर का जो फुट है ये कितनी डिस्टेंस पर है, कहां से, फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। जो वॉल है उसका जो बेस है ये इससे कितनी डिस्टेंस पर है ये हमें कैलकुलेट करना है। ए बी सी ये राइट ट्रायंगल है, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए सी बी ए लैडर सी डी विच इज 10 मीटर लॉन्ग and BC be a wall of 8 meter height. What we have to find? To find, क्या find करना है, AB. AB हमें find करना है। Solution, my students, this is a right triangle, so we can implement Pythagoras theorem here. In राइट ट्रायंगल ABC में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज AC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर AC, दैट इज 10 का होल स्क्वायर AB कैलकुलेट करना है प्लस BC 8 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 10 का होल स्क्वायर 100, AB स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर 64। 64 को शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड, तो 100 माइनस 64 इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 36 इक्वल्स टू AB स्क्वायर। फाइनली AB स्क्वायर इक्वल टू 36, देन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, देन AB इक्वल्स टू 36 का स्क्वायर रूट 6, दैट इज 6 मीटर। क्या डिस्टेंस आ गई है, द डिस्टेंस of the foot of the ladder from the base of the wall is 6 meter. At last we will write this line here. What line? Hence the foot of the ladder is 6 meter away from the base of the wall. This is the question number 9. Now question number 10. The question number 10 is, a guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 meter long. एक गाय वायर है, मीन्स तार समझ लीजिए, एक झूलता हुआ तार
जो अटैच है, बंधा हुआ है किससे, एक वर्टिकल पोल से जिसकी हाइट कितनी है 18 मीटर। एक वर्टिकल पोल है आपका जिसकी हाइट 18 मीटर है। ए भी आपका एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट कितनी है, A guy wire attached to a vertical pole of height 18 meter is 24 मीटर लॉन्ग। वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, 24 मीटर लॉन्ग है। एक वायर है जो यहां से बंधा हुआ है। has to stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that wire will be taut? Means एक वायर है जो यहां पर पड़ा हुआ है, समझ लीजिए 24 मीटर लॉन्ग का। ये कह रहे हैं कि इसके फुट से किसको कितना दूर खींचा जाए, कितनी दूर ले जाया जाए इस वायर को, कि बिल्कुल इसके बेस से यहां पर ये बिल्कुल वायर क्या हो जाए, एकदम टाइट हो जाए। देयर इज नो स्लैक, देयर इज नो स्लैक इन द वायर। वायर की लेंथ कितनी दे रखी है, 24 मीटर। सो वॉट वी आर ऑब्जर्विंग, मान लो हम जो वायर को खींच के लाए हैं, किस पॉइंट तक लाए हैं, सी पॉइंट तक लाए हैं, कि वायर की जो लेंथ है वो बिल्कुल क्या हो गई, वायर में कोई स्लैक, कोई ढीलापन नहीं रहा, बिल्कुल टाइट हो गया, स्ट्रेट हो गया वायर एकदम। तो ये पूछ रहे हैं बेस से कितने डिस्टेंस पर लाए हैं आप वायर को यहां पर खींचने के लिए। तो क्या लिखेंगे यहां पर कि हेयर ए बी ए पोल ऑफ height 18 meter and AC be a wire of length 24 meter. What we have to find? Find क्या करना है, BC हमें कैलकुलेट करना है कि वायर को कितनी डिस्टेंस पर लाया जाए कि बिल्कुल टाइट हो जाए। और ये राइट ट्रायंगल है। सो माय स्टूडेंट्स, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल अगेन। वी कैन इम्प्लीमेंट पाइथागोरस थ्योरम। सॉल्यूशन, in triangle, in right triangle ABC में AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बाई विच थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम से। AC 24 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB 18 का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। फाइनली 24 का होल स्क्वायर 576 इक्वल्स टू 18 का होल स्क्वायर 324 प्लस BC स्क्वायर। 324 को शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड, फाइनली माइनस कर दिए 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 3 2 इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। फाइनली BC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है, 252। सो BC की वैल्यू क्या आ गई है, BC की वैल्यू आ गई अंडर रूट में 252। BC की वैल्यू आ गई है आपकी 252। टू 252 के फैक्टर कर लीजिए, 2 से चला जाएगा ये, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 से कर लीजिए, 2 6 जा, 2 3 जा, 2 से कर 3 से कर लीजिए, 3 से 3 2 जा और 3 1 जा, 3 से कर लीजिए, 3 7 जा। फैक्टर्स क्या आ गए हैं, फैक्टर्स आ गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। 2 2 का एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 3 का एक 3 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 3 रूट 7, दैट इज 3 2 जा 6 रूट 7 मीटर। मीन्स पोल के बेस से वायर को 6 रूट 7 मीटर दूर लाना पड़ेगा, तब वो वायर बिल्कुल टाइट हो जाएगा। ओके, क्या लिखेंगे आप इसमें, you will write hence the stake may be placed at a distance of 6 root 7 meter from the base of the pole. पोल के बेस से कितनी दूर लाना पड़ेगा उस स्टेक को, 6 रूट 7 मीटर। ये आपका क्वेश्चन कौन सा था, ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। Question number 11. An aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour
At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? एक प्लेन 1000 की स्पीड से एक एयरपोर्ट से किधर गया है? नॉर्थ डायरेक्शन में. दूसरा प्लेन उसी एयरपोर्ट से वेस्ट डायरेक्शन में गया है 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो इन्होंने पूछा है कि 1.5 घंटे के बाद दोनों प्लेन के बीच में क्या डिफरेंस, क्या डिस्टेंस होगी दोनों प्लेन में. तो वी आर ऑब्जर्विंग दैट डायरेक्शंस. This is the north, this is south, this is east, and this is west. And O be the location of the airport. What is the O? O वो प्लेस है जहाँ एयरपोर्ट है और जहाँ से प्लेन्स गए हैं. एक प्लेन गया है नॉर्थ डायरेक्शन में, एक प्लेन गया है वेस्ट डायरेक्शन में. जो नॉर्थ डायरेक्शन में गया है वो 1000 की स्पीड से गया है. हमने मान लिया जो 1000 की स्पीड से प्लेन गया वो ए पॉइंट तक पहुंच गया आफ्टर 1.5 आवर्स. सिमिलरली फ्रॉम द सेम एयरपोर्ट अनदर एयरप्लेन विच मूव्स with a speed of 1200 km per hour and reach at a point B in the direction of west. Then the distance between two planes, that is AB, which we have to calculate here. क्या करना है हमें? दो जो प्लेन पहुंच गए हैं A और B पॉइंट पर, उनके बीच में गैप निकालना है. तो माय डियर स्टूडेंट, लेट O be the position of the airport and O be the position of the airport after 1.5 hour. One plane cover the distance OA with a speed of 1000 km per hour in north direction and another aeroplane covers distance OB with a speed of 1200 km per hour in west direction. So students, OA क्या हो जाएगा आपका? OA is a distance and we know that distance equal to speed into time. तो स्पीड आपकी कितनी है? 1200 और टाइम है 1.5 आवर इक्वल्स टू 1200. सॉरी, OA 1000 की स्पीड से गया है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये 1000 की स्पीड से गया है प्लेन हमारा. 1000 इंटू 2 1 2 और 1 3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा. 500 5 से 1500 किलोमीटर आ गई है डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितनी आ गई है? 1500 किलोमीटर. सिमिलरली ओ भी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, 1200 इंटू 3/2, 2 से कैंसिल कर दिए 6 3 जा 1800 किलोमीटर. ये डिस्टेंस आपकी आ गई है 1800 किलोमीटर. नाउ in this triangle, in this right triangle, we are going to implement again Pythagoras theorem. So in right triangle AOB में using Pythagoras theorem, that is AB का whole square equals to OA का whole square plus OB का whole square. OA 1500 का whole square plus OB
1800 का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1500 का होल स्क्वायर 225, 1500, 15 का स्क्वायर 225, 2 0 के 4 0 हो जाएंगे, प्लस 18 का होल स्क्वायर 324 और 2 0 के जब स्क्वायर करेंगे कितने 0 हो जाएंगे, 4 0 हो जाएंगे। ऐड कर लीजिए दोनों को, फाइनली ऐड कर लीजिए इनको और ऐड करके आ जाएगा 549, इतना फैक्टर कर लेंगे हम इसके, तो 9 इंटू 61 इंटू 100 इंटू 100, तो फाइनली ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है ये। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट लेंगे तो 9 का अंडर रूट 3, 200 का 100 और 61 एज इट इज ब्रैकेट में रह जाएगा, इतना किलोमीटर। कितना डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, दोनों प्लेन्स के बीच में आफ्टर 1.5 आवर्स, 300√61 किलोमीटर का गैप होगा। ओके, सोल्यूशन कौन सा था ये, सोल्यूशन था ये क्वेश्चन नंबर 11। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 12 इज the question number 12, 2 poles. Students, question number 12 you will complete. It is simple, easy question. The question number 13, I am going to start. Question number 13. D and E are points on sides CA and CB respectively of a triangle ABC, right triangle at C. एक right triangle है ABC और C पर right triangle है, D पॉइंट तो CA पर है और E पॉइंट किस पर है, CB पर। Then prove that given already it is mentioned in the question, हमें क्या प्रूफ करना है, we have to prove AE square plus BD square is equals to AB square plus DE square। हमें प्रूफ करना है AE स्क्वायर, AE तो AE को ज्वाइन कर दीजिए, प्लस BD स्क्वायर, B से DE को ज्वाइन कर दीजिए, इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर ऑलरेडी ज्वाइन है, DE स्क्वायर, D से E को ज्वाइन कर दीजिए। माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस डायग्राम वी आर ऑब्जर्विंग दैट देयर आर 4 राइट ट्रायंगल्स, 4 राइट ट्रायंगल्स हैं। कौन कौन से, DCE 1, BCD सेकंड, ACE थर्ड एंड ACB 4. In all 4 right triangles, firstly we will implement Pythagoras theorem. करने जा रहे हैं to proving this question. Proof. First triangle, in triangle DCE में DE square is equals to DC square plus CE square. Equation number 1 by which theorem से, by पाइथागोरस थ्योरम से। अगेन इन राइट ट्रायंगल BCD में फिर लगाने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, BD का होल स्क्वायर इक्वल टू CD का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अगेन इन राइट ट्रायंगल ACE में, इन राइट ट्रायंगल ACE में AE का होल स्क्वायर is equals to AC का होल स्क्वायर प्लस CE का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अगेन इन द लास्ट ट्रायंगल ACB में, इन राइट ट्रायंगल ACB में AB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। नाउ इन वेरिफिकेशन जो हमें प्रूफ करना है उसमें देखिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आ रहा है, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आ रहा है। तो इन दोनों इक्वेशंस को माय डियर स्टूडेंट आई एम गोइंग टू ऐड ऑन एडिंग इक्वेशन 2 and 3, ऑन
एडिंग 2 and 3, कर दीजिए दोनों को ऐड। यहां क्या लिखा है 2 BD स्क्वायर प्लस थर्ड में क्या लिखा है AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर के राइट साइड में CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस और इक्वेशन 3 के राइट साइड में AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। फाइनली लेफ्ट साइड में क्या है BD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट साइड में वी आर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स DC स्क्वायर और CE स्क्वायर, DC स्क्वायर और CE स्क्वायर को दोनों को एक साथ लिखने जा रहे हैं। DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और AC स्क्वायर को एक साथ लिखने जा रहे हैं प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं DE स्क्वायर, इन दोनों की जगह प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की जगह क्या आ सकता है AB स्क्वायर, यहां आ सकता है इसकी जगह AB स्क्वायर। किस इक्वेशन का यूज किया बाय 1 and 4 का, और यही वेरिफिकेशन था इस क्वेश्चन का BD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। Hence proof. This is the verification of question number 13 of this exercise, exercise 6.5. Now question number 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। क्वेश्चन नंबर 14 The perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersects BC at D such that DB equal to thrice CD, see figure 6.55। एक डायग्राम दे रखा है आपको A, C, B और this is the perpendicular and this is the point D। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ करना है ट्वाइस AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये प्रूफ करना है इस डायग्राम में। द परपेंडिकुलर फ्रॉम A, एक ट्रायंगल ABC में वर्टेक्स A से परपेंडिकुलर डाला गया है BC पर, सच दैट गिवन भी आपको BD जो है BD इसका ट्रिपल है, तो प्रूफ करना है ये रिजल्ट हमें। देखिए प्रूफ एज BD इक्वल टू थ्राइस CD, व्हाट इज दिस गिवन फ्रॉम फिगर। BC को हम लिख सकते हैं CD प्लस BD, बट BD की वैल्यू क्या है 3CD, तो CD प्लस 3CD, तो फाइनली कितने CD आ गए 4CD। तो यहां से CD की वैल्यू क्या आ गई है, CD की वैल्यू आ गई 1/4 ऑफ BC। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1 बाय 1 से। नाउ वी आर ऑब्जर्विंग दैट इन दिस डायग्राम देयर आर टू राइट ट्रायंगल्स, इन बोथ द राइट ट्रायंगल्स आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट द पाइथागोरस थ्योरम। दोनों में लगाने जा रहे हैं। इन राइट ट्रायंगल ADC में AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AD square. My dear student, observe one thing. In our verification, AD square, there is no need in the verification. वेरिफिकेशन में AD का जरूरत ही नहीं है, तो यहां से AD स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। फाइनली AD स्क्वायर की वैल्यू आगे CD स्क्वायर से जाके माइनस हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। जैसे इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें पाइथागोरस लगाने जा रहे हैं अनदर ट्रायंगल में। इन राइट ट्रायंगल ADB में पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या है AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर,
तो यहाँ हमने लिख दिया AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस, और BD की वैल्यू 3CD ऑलरेडी गिवन है फ्रॉम इक्वेशन 1 से। BD की जगह हम लिख सकते हैं 3CD का होल स्क्वायर। किसका यूज किया हमने यहाँ पर? हमने यूज किया यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 का बाय 1 एंड 3 से। सो फाइनली AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, 3CD का होल स्क्वायर 9CD स्क्वायर, 9 में से 1 माइनस कर दीजिए। फाइनली AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई है AC स्क्वायर प्लस 8CD स्क्वायर। बट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से CD की वैल्यू क्या दे रखी है? हाफ ऑफ 1/4 ऑफ BC। एक्चुअली इन वेरिफिकेशन देयर इज नो यूज ऑफ CD ऑल्सो, CD का भी यूज नहीं है उसमें, CD नहीं आ रहा है आंसर में, तो CD को भी रिमूव करने जा रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से। सेकंड में CD का वैल्यू है 1/4 ऑफ BC, तो इन प्लेस ऑफ CD आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट, आई एम गोइंग टू पुट 1/4 ऑफ BC, रख दीजिए यहां पर। सो फाइनल रिजल्ट इज AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। AC स्क्वायर लाना है आंसर में, देखिए AB भी लाना है इसलिए नहीं रिमूव कर रहे हैं, CD नहीं लाना है तो CD को रिमूव कर रहे हैं, तो प्लस के 8 और CD की वैल्यू क्या है? 1/4 ऑफ BC, 1/4 ऑफ BC का होल स्क्वायर। तो फाइनली AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस के 8 इंटू स्क्वायर कर दीजिए BC स्क्वायर अपॉन 16, 8 2 जा 16, एलसीएम ले लीजिए, 2 इधर चला जाएगा, 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? AB स्क्वायर 2 इधर ले आइए, फाइनली 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 6.5। ये क्वेश्चन 14 का वेरिफिकेशन था और दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 इज दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, D is a point on BC, D is a point on BC such that BD equal to 1/3 of BC, then prove that 9AD square equal to 7AB square। ये हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है ABC, D इज ए पॉइंट ऑन BC, D BC पर एक पॉइंट है और BD जो है वो 1/3 है BC का, ये D पॉइंट आ गया आपका, और जो BD है वो BC का क्या है? 1/3 है। प्रूफ करना है 9AD स्क्वायर, AD को ज्वाइन कर दीजिए, 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB स्क्वायर। ट्रायंगल इक्विलेटरल है डियर स्टूडेंट्स, दे ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। क्या प्रूफ करना है? गिवन क्या है? गिवन है ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल है मीन्स AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC एंड BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, ये भी दे रखा है आपको। कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव प्रूफ करना है 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन परपेंडिकुलर डाल दीजिए, बिकॉज विदाउट परपेंडिकुलर विदाउट राइट एंगल वी कांट अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। कंस्ट्रक्शन व्हाट? ड्रॉ AE परपेंडिकुलर BC। प्रूफ स्टूडेंट्स, एज AE परपेंडिकुलर है BC पर
दिस implies triangle AEB is congruent triangle AEC के ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय RHS से। RHS से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर देंगे आप, एक तो 90 के सामने हाइपोटेनियस और एक साइड कॉमन आ जाएगी। ऑलरेडी इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं एक बार इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट। तो जब दोनों इक्वल आ जाएंगे दिस इंप्लाइज BE इक्वल टू CE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। जैसा इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लीजिए, इसको 1 लेट कर लीजिए। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहे हैं AED ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल AED में AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, AD आंसर में लाना है, AE नहीं लाना है। AE स्क्वायर एल्टीट्यूड वाली साइड नहीं लानी है, एक्चुअली DE भी नहीं लाना है, लेकिन DE जो है वो BC पर इंप्लीमेंट है, BC पर लाई कर रहा है और BC आंसर में चाहिए बिकॉज BC AB दे बोथ आर इक्वल ड्यू टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो वी आर एलिमिनेट AE स्क्वायर। तो AE यहां से AE की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। AE स्क्वायर की वैल्यू आ गई है AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब अनदर ट्रायंगल AEB में the both triangles are congruent, AEB or AEC, so only no need to implement the Pythagoras theorem in this triangle also. They both are congruent means equal. Congruent figures are those figure which has same shape and same size. तो इस वाले ट्रायंगल में लगाने जा रहे हैं। तो इन राइट ट्रायंगल AEB में पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर इक्वल्स टू BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। This implies AB square equals to BE। My student, BE को half of BC लिखा जा सकता है। कहां से? BE को half of BC लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो यहां क्या लिख दिया मैंने? हाफ ऑफ BC का होल स्क्वायर प्लस AE की वैल्यू, AE स्क्वायर की वैल्यू AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। तो यहां क्या लिख दिया? AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। किस इक्वेशन का यूज किया? मैंने यूज किया 2 और 3 का, बाय 2 and 3 से। फाइनली क्या हुआ? AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AD स्क्वायर आंसर में चाहिए माइनस DE। देयर इज नो वैल्यू ऑफ DE इन माई सॉल्यूशन, बट DE को वी कैन राइट BE माइनस BD। DE को BE माइनस BD लिख सकते हैं और BD की वैल्यू भी मेरे पास है और BE की वैल्यू मेरे पास है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू चेंज इन प्लेस ऑफ DE, BE माइनस BD लिखने जा रहे हैं। क्या? माइनस DE की जगह लिखने जा रहे हैं BE माइनस BD होल स्क्वायर एज इट इज। फाइनली आई एम नॉट हैविंग द स्पेस, this side I can solve. Finally AB square equal to BC square upon 4। ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो BC की जगह क्या लिखा जा सकता है? AB लिखा जा सकता है। तो यहां क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AD स्क्वायर माइनस BE। BE की वैल्यू क्या है? BE की वैल्यू है आपकी इक्वेशन 2 से हाफ ऑफ BC और BD की वैल्यू है आपकी, BD की वैल्यू है 1/3 ऑफ BC। तो क्या लिख दिया? BE की जगह हाफ ऑफ BC और BD की जगह 1/3 ऑफ BC होल स्क्वायर एज इट इज। दिस इंप्लाइज AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AD स्क्वायर माइनस BC की जगह AB लिखा जा सकता है, ट्रायंगल इक्विलेटरल है। तो यहाँ क्या आ गया? AB अपॉन 2 माइनस AB अपॉन 3 का होल स्क्वायर। तो AB स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AD स्क्वायर माइनस एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो 3AB माइनस के 2AB स्क्वायर ऐसी इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AD स्क्वायर माइनस 3AB माइनस 2AB AB upon 6 का होल स्क्वायर। Now this side I am going to remove due to short space on the board.
देखिए फाइनली रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए डी स्क्वायर प्लस स्क्वायर ओपन कर दीजिए ए बी अपॉन 6 का होल स्क्वायर ए बी स्क्वायर अपॉन 36, ए बी स्क्वायर अपॉन 36। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 36 आ जाएगा, 4 9 जा 36, 9 ए बी स्क्वायर प्लस माइनस चल रहा है यहाँ पर, यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस 36 ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। 9 में से 1 माइनस कर 36 इधर आ जाएगा, चलिए यहीं रहने दीजिए। 9 में से ए बी स्क्वायर माइनस हो जाएंगे 8 ए बी स्क्वायर प्लस 36 ए डी स्क्वायर अपॉन में 36 कॉमन ऊपर से 4 आ जाएगा, 4 2 जा ए बी स्क्वायर प्लस के 4 9 जा ए डी स्क्वायर अपॉन में 36, 4 से कैंसिल हो गया, 4 9 जा 9 इधर चला जाएगा ए बी स्क्वायर की साइड, नाइन इधर ले आइए तो 9 ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए बी स्क्वायर प्लस के 9 ए डी स्क्वायर, 2 ए बी स्क्वायर इधर ले आइए तो 9 में से 2 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 7 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 9 ए डी स्क्वायर। ये आपका वेरिफिकेशन था इस क्वेश्चन नंबर 15 का ऑफ एक्सरसाइज 6.5। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट क्या किया इसमें, पहले एक ट्रायंगल था ए बी सी, परपेंडिकुलर डाला, उसमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट किया, बीई ईसी के इक्वल आ जाएगा बाय आरएचएस से, सीपीसीटी से बीई आरएचएस से कॉन्ग्रेंट करने के बाद सीपीसीटी से बीई ईसी के इक्वल आ जाएगा और दोनों के दोनों हाफ हो जाएंगे बीसी के, और बीडी की वैल्यू 1/3 है बीसी का, ये भी गिवन है आपको। और क्या करना है, प्रूफ करना है 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। तो पहले इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई और यहां से एई की वैल्यू निकाले, क्योंकि एई का रोल नहीं है, क्योंकि दिस इज अ कंस्ट्रक्शन लाइन। एई क्या है, कंस्ट्रक्शन लाइन, एंड देयर इज नो यूज ऑफ द कंस्ट्रक्शन इन द वेरिफिकेशन ऑफ द क्वेश्चन। तो एई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, फिर अनदर ट्रायंगल एईबी में पाइथागोरस थ्योरम लगाई और उसमें एई स्क्वायर की वैल्यू पुट की, और इन प्लेस ऑफ बीई पुट कर दिया हाफ ऑफ बीसी, एंड इन प्लेस ऑफ बीडी पुट कर दिया 1/3 ऑफ बीसी, and after the calculation we can get the final answer. Now this student, question number 16 you will complete at home. The question number 17, tick the correct answer, justify your answer in a triangle ABC, AB AC BC given है, then angle B की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। My dear students, we are observing that 17 क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ए बी गिवन है 6√3, ए सी गिवन है 12 और बी सी गिवन है 6 सेंटीमीटर। हेयर इन ऑल 3 साइड्स, साइड ए सी इज द लॉन्गेस्ट, क्योंकि एंगल बी की बात कर रहे हैं। एंगल बी ए सी का अपोजिट होगा, एंगल बी ए सी का अपोजिट होगा, बी सी का अपोजिट एंगल ए होगा, ए बी का अपोजिट एंगल सी होगा। तो यहाँ पर ए बी सी में ए सी दे रखा है, बी नहीं है, बी मिसिंग है। तो सबसे बड़ी साइड 12 है इन तीनों में, तो ए सी का स्क्वायर कैलकुलेट करिए, 12 का होल स्क्वायर 144। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करिए, ए बी 6√3 का होल स्क्वायर और बी सी 6 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, √3 का स्क्वायर 3 और 6 का स्क्वायर 36। 36 3 या 108 प्लस 36 ऐड कर दीजिए 144। वी आर ऑब्जर्विंग दैट ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मीन्स
कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इट इज वैलिड हियर, वैलिड हो रही है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है कंडीशंस। जब कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो वी कैन से दैट एंगल बी इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो एंगल बी क्या होगा? सो एंगल बी आपका होगा 90 डिग्री बाय विच थ्योरम? बाय कन्वर्स ऑफ Pythagoras theorem से। Now today we have done the chapter number 6 triangles. Now after this we will start the chapter number 8 introduction to trigonometry. Up to that complete your work, do work hard for the board exam. Thank you, have a good day.